Welcome everybody and thank you so much. Today is 30th of March 2024, 6 p.m. Saturday. Fantastic year gone by, financial year. Markets on top. Fantastic returns in small cap, mid cap, all categories. Huge money was made. A lot of money was made for all investors. Today I'm going to talk about not mutual funds distribution business. छुट्टी का दिन है, होली के बाद का दिन है. I thought I will speak 10 minutes on how to overcome challenges and adversities in life. I'm not an expert, but I will try to give you some of my thoughts. And if you connect with me, please do support me in the chat box by writing whatever you feel like. Why I chose this topic is without challenge, there is no life. If you have to pray God, never pray that there should be no challenge in life. ऐसा नहीं है कि प्रे करना है कि रोज चैलेंज दो, रोज सफरिंग दो, रोज परेशानी दो, ऐसा नहीं है. लेकिन I want to tell you, a life without a challenge is a waste of life. Do you agree or not? Keep writing in the chat box. A life without challenge is a waste of life. If you wake up in the morning, सुबह उठ के अगर कोई चैलेंज नहीं है जिंदगी में, तो उठने का फायदा क्या है? I have seen many people in life who chose to retire early and then they came back saying बहुत बोर हो जाती है लाइफ, कुछ करने को चाहिए, कुछ एक्शन चाहिए लाइफ में. On Friday, we look forward to Saturday and Sunday. On Sunday evening, we look forward to Monday to go to office. Yes or no? 2 दिन में बोर हो जाते हैं. लगता है कुछ करना है. What I want to say is that कहते हैं there are two things which you cannot avoid: death and taxes. I want to add, you cannot avoid adversities and challenges in life. Do you agree? Everyone is suffering. Keep writing in the chat box. Everyone is suffering. जॉन बोगले, वैनगार्ड के जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड कंपनी है, he said, I don't know anyone who knows anyone who can time the market. I want to say today, I don't know anyone who knows anyone who is not suffering. I don't know anyone who knows anyone who is not suffering. मैं किसी को नहीं जानता जो किसी को जानता है जिसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं. यानी हर कोई सफर कर रहा है. बट अच्छी बात क्या है? एवरीवन इज लिविंग. एवरीवन इज लिविंग बिकॉज अनसर्टेनिटी जो चीज होती है ना, अनिश्चितता, चैलेंजेस, वो हमें एक चीज देती है. उसका नाम है होप. एवरीवन इज लिविंग ऑन होप. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू नो माई फ्यूचर, what I will do tomorrow, how long I will live, how many members I will have in master stroke, how much AUM I will have next year. I don't want to know all this. अगर पता चल गया तो मजा क्या? करेक्ट और नॉट? फिर चैलेंज क्या है? चैलेंज तो ये है ना कि कल एक क्लाइंट डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर की बात करने बुलाया है, क्या होगा पता नहीं. अगर ये पता चल गया कि नहीं जाएगा तो मजा खत्म, और अगर ये पता चल गया कि क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा तो भी क्या फायदा? मजा तो ये है सस्पेंस में, चैलेंज में. देखते हैं क्या होगा. I want to ask you and check with you. How many of you want to live 500 years? I don't want to live. How many want to live 500 years? It is so boring, isn't it?
अरे आओ, काम करो, जाओ। 70, 80, 90 इज गुड। मे बी अगर ह्यूमन इवोल्यूशन होगा, वी थिंक, you know, maybe after 100 years, people will live 100, 120, 130 years. That's fine. Why do you want to live 500 years? Nobody wants to live 500 years. जब तक दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में, भरत गोहिल जी लिख रहे हैं। विवेकानंद जी के लिए या किसी बड़े व्यक्ति के लिए मैंने सुना था, जिनकी लाइफ कम थी, तो उनकी माता ने चिंता जाहिर की और उन्होंने अपने गुरु के बाद पूछा कि इसे इतनी कम उम्र क्यों दे रहे हैं। गुरु ने कहा, दो चॉइस है तेरे पास, या तो लंबी उम्र ले ले तकलीफों भरी, या एक अच्छी उम्र ले ले, छोटी उम्र ले ले लेकिन अच्छी जिंदगी जी ले, दुनिया में नाम कमा ले, दूसरे का भला कर ले, क्या चाहिए? तो माँ ने बोला ओके। आई थिंक चैलेंजेस के बिना मजा नहीं है। हर आदमी की लाइफ में चैलेंज है। किसी को हेल्थ की इशू है, किसी के फैमिली में इशू है, किसी को पैसे की तकलीफ है, किसी को रिश्तों में तकलीफ है। अगल बगल किसी को भी देख लो, एक आदमी का भी नाम याद आता है तो लिखो चैट पे, आई नो समवन जिसकी जिंदगी में आज तक कभी कोई चैलेंज नहीं आया। और हर दूसरे का चैलेंज छोटा लगता है, खुद का चैलेंज बड़ा लगता है। मतलब कहते हैं कि वो कबीर का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आप नो, मुझसे बुरा ना कोई। यहां उल्टी बात बोलता हूं। जब मैं अपने दर्द के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में सोचता हूं ना, तो लगता है बहुत है, लेकिन जब दुनिया का दर्द देखता हूं तो लगता है कुछ भी नहीं है। कितनी तकलीफें हैं लोगों को। मतलब किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी के परिवार में अर्ली डेथ हो रही है, किसी की कम उम्र में हेल्थ की इशू आ गई है। जिंदगी चलती है, फाइट करना पड़ेगा। रोज प्रे करना है कि ऐसा ना हो, मगर लॉ ऑफ एवरेज है। संभावनाओं की चीजें हैं दुनिया। चार चीजों के प्रति रिस्क नहीं लेना चाहिए। हेल्थ, ये आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल है लेकिन आपके हाथ में है, बहुत कुछ आपके हाथ में है। दूसरी, परिवार, परिवार का रिस्क नहीं लेना है। चैलेंजेस जिंदगी में हजार आएंगे, अननोन चीजें आएंगी, लेकिन कोशिश ये करो कि इस चार चीजों से पंगा मत लो। हेल्थ, परिवार, गवर्नमेंट रेगुलेशन और गवर्नमेंट के रिस्क मत लो। चौथी चीज है प्रतिष्ठा। ऐसा कुछ मत करो जहां प्रतिष्ठा का रिस्क आ जाए, बहुत मुश्किल है। रिस्क लेना है, चैलेंज लेना है लाइफ में, तो सबसे छोटा चैलेंज क्या है मालूम है? पैसे का चैलेंज। मनी प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पैसे बन जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार चीज का रिस्क नहीं लेना है: हेल्थ का, फैमिली का, इलीगल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट पंगों में नहीं जाना है, और प्रतिष्ठा का रिस्क नहीं लेना है। ये सब चैलेंजेस बड़े चैलेंज होते हैं। बाकी कोई भी चैलेंज है ना, क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, छोटी मोटी तकलीफें आ रही हैं जा रही हैं, मैनेज हो जाता है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, लेट मी आस्क यू, अगर भगवान ने आपसे पूछ लिया कि भाई सबको दो तकलीफ तो देता हूं मैं, तेरे को क्या चाहिए, चूज कर ले, चूज कर पाएंगे आप? कि दो, 20 छोटी तकलीफ दूंगा, दो बड़ी तकलीफ दूंगा। बड़ी तकलीफ मतलब जल्दी डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक आएगा या कैंसर आएगा, चूज कर सकेंगे आप? मौत तो आनी है, किसी न किसी रूप में आनी है, लेकिन क्या आप चूज कर पाएंगे? भगवान को बोलेंगे कि भाई इस तरीके से मुझे मेरी जान लेना? नहीं कर पाएंगे।
भगवान बोलेगा शरीर के एक हिस्से में तकलीफ दूंगा तुमको, बोलो कौन से तकलीफ हिस्से में दूं। चूज कर पाएंगे? पाँव में दो, हाथ में दो, यहां दो, यहां दो, नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल। यू विल नॉट बी एबल टू चूज। इफ गॉड आस्क यू वेयर शुड आई पनिश यू, विच बॉडी पार्ट आई शुड गिव यू पेन, you will not be able to choose. So respect God, respect challenges. Whenever you face any crisis, कोई challenge आएगा, hope is a big thing. You have to fight. I think what is the best way to relieve pain? What is the best way to handle adversity and challenges? It is when you help other people overcome their challenges and adversities. जैसे now, right now, I'm talking to you guys. Hundreds of people have joined. If I can help you overcome your challenges and adversity, I think my challenges are over. हर कोई परेशान है। आप सोचते हैं ब्रिजेश डालमिया तो बड़ा खुश है यार, इतना एयूम है, मास्टर स्ट्रोक चलाता है। मेरे अपने चैलेंजेस हैं, आपके अपने चैलेंजेस हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अपने चैलेंज हैं, मुकेश अंबानी के अपने चैलेंजेस हैं। हो सकता है पब्लिक में कोई नहीं बताता उसको चैलेंज किया है, लेकिन परेशानियां सबके साथ हैं। डू यू एग्री और नॉट? वी आर बेगर्स टू गॉड। हार्दिक पांड्या। आई थिंक लिविंग विद इन द मीन्स, लविंग योर फैमिली is enough. If you have a good life, if your family is safe, there is no other challenge in life. आते जाएंगे, जाते जाएंगे. So the first thing is that your family should be happy, healthy. That's it. All other challenges and adversities can be faced off because you cannot choose what you want. If you do not have a challenge for next 30 days, life will be bored. Like mutual fund SIP returns, lump sum returns, when you look for last 30 years, the graph goes like this. When you look for 2 years, the graph goes like this, right? In the same way, when you look back 30 years in your life, and let me know in the chat box, you will think there was no adversity, there were no challenges. Life will look like this because you are right now living, managing. Long-term graph of your life will be like this, a little bit like this. Short-term, last 6 months, next 6 months, it looks like this. Too much turbulence. मतलब अगर कभी चैलेंज आए, एडवर्सिटी आए ना, तो ये सोच लेना कल नहीं रहेगा, परसों ठीक हो जाएगा। होप इज अ गुड थिंग। कन्विंस योर सेल्फ, बी सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरे से सिंपैथी मत ढूंढो, अपनी तकलीफ पब्लिक मत करो, अपने पास रखो। किसको बताना है? सिर्फ परिवार को या दो दोस्तों को, और किसी से जिक्र नहीं करना है। ढिंडोरा नहीं पीटना है। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, मैनेज इट। मजा है अपनी तकलीफों, अपने चैलेंजेस को हैंडल करने में। मतलब अपना एयम बताने में उतना मजा नहीं है जितना अपना एयम नहीं बताने में है, और दूसरे को खुद पता चले। उसी तरह से मजा इस बात में नहीं है कि क्या तकलीफें हैं आपको, सबको बता रहे हैं आप। मजा इस बात में है, तकलीफें हैं लेकिन हैंडल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पति को प्रॉब्लम है तो वाइफ सपोर्ट कर रही है, वाइफ को प्रॉब्लम है तो पति सपोर्ट कर रहा है, जिंदगी निकल जाएगी। बच्चे, मैं तो कहता हूं कि एज पेरेंट्स हमारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, बच्चों को प्यार करो, बस और कुछ नहीं। दे विल हैंडल इट। They only need your love. They will overcome all challenges and adversity. If you just tell them, I'm there, हो जाएगा, don't worry. They are not looking for ज्ञान, they are only looking for love. फोड़ देंगे दुनिया। I think I will stop here.
ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू अ मैसेज इज दैट सबके लाइफ में चैलेंज है, हैंडल करो। और चैलेंज नहीं आएगा तो जिंदगी का मजा नहीं। यहां तक पहुंचे हैं ना, आगे भी जाएंगे, अच्छा ही होगा। संसार का नियम ही यही है, तकलीफों को झेलना है। इसलिए जब खुशी आए ना तो हंस के जियो, दूसरे की हेल्प करो, फैमिली का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्लाइंट का ध्यान रखो, क्लाइंट आपका ध्यान रखे। और मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड, लेट मी क्लोज बाय सेइंग दिस, मतलब बिजनेस का कोई भी चैलेंज आएगा ना, लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। म्यूचुअल फंड की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है आपको। अगर बिजनेस में कोई भी चैलेंज आएगा ना, क्लाइंट ही बचाएगा, क्लाइंट ही रहेगा साथ में खड़ा। लास्ट माइल में एक बंदा खड़ा रहेगा, वो आपका क्लाइंट, जो बोलेगा मैं अपना यूं तेरे साथ रखूंगा ब्रजेश, तू आगे बढ़, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। 10 आदमी ऐसे हो गए ना आपके क्लाइंट, जिंदगी निकल जाएगी आपकी, खर्चे निकल जाएंगे आपके। तो चैलेंज क्या है? टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।